آپ کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے 4 مسئلے، اس کے بعد کہ فرشِ اعضاء پہ آنسو بہاؤ گے تم مگر فرشِ اعضاء پہ آنسو تم بہاؤ گے اگر زہرا کی دعاؤں کو رداؤں کو پاؤ گے۔ فرشِ اعضاء پہ آنسو بہاؤ گے اگر تم زہرا کی دعاؤں کو رضاؤں کو پاؤ گے، اور وعدہ ہے گل کا ماتمی سے روز حشر تم، وعدہ ہے گل کا ماتمی سے روز حشر تم، قبروں سے جب اٹھو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ ایک سلوات پڑھ کے آتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی تمہید، تشریح، توضیح بالکل بھی مقصود نہیں ہے۔ میں خراج تحسین طور پر ہی تمام علماء کرام کو پیش کرتا ہوں۔ ایک خراج جناب عزت مآب شکیل ریاض اسدی صاحب کے لیے لکھا ہے۔ میری 1000 وجہ میں صرف چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ مالک کی عطا ہے تو ایک خاص کرم ہے جو کہ ہر مہینے مولانا ذکر خیر کرواتے ہیں، اور اس میں ایک چیز میں نے محسوس کی ہے، محسوس جو کی ہے وہ میں پیش کرنے لگا ہوں، اور اگر میرے لیے ممکن ہو تو میں یہ مصرے پڑھ کے ہی مسائل پڑھ دوں، میرے حصے کا فضائل ہو جائے گا، لیکن میرا دل ہے کہ تھوڑا سا فضائل لازم کروں مضمون سمجھ کے۔ تو ایک سلوات پڑھے میں شکیل بھائی کے لیے۔ شکیل بھائی اس کے لیے آپ کی نظر کرم چاہیے ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں عزا کی سدرہ پہ جا کے دیکھا تو نور مظہر یہ مجھ سے بولا۔ مشکل بات کریے۔ عزا کی سدرہ پہ جا کے دیکھا تو نور مظہر یہ مجھ سے بولا۔ ساجدی عزا کی سدرہ پہ جا کے دیکھا تو نور مظہر یہ مجھ سے بولا، میں اس حقیقت کو دیکھ آیا مگر ذرا سا بھی نہ اور یہ جو بات دیکھی ہے میں وہ چھٹے مصرے میں پیش کر رہا ہوں کہ عزا کی سدرہ پہ جا کے دیکھا تو نور مظہر یہ مجھ سے بولا، میں اس حقیقت کو دیکھ آیا مگر ذرا سا بھی نہ میں ڈولا، کیا تیری عزاداری کی مہک سے ہوا معطر کیوں عرش سارا۔ تیری عزاداری کی مہک سے ہوا معطر کیوں عرش سارا، تیری عزاداری کی چھلک نے تیرے عقیدے کا راز کھولا۔ تیری عزاداری کی چھلک نے تیرے عقیدے کا راز کھولا۔ کیا راز کھولا ہوگی؟ تیری عزاداری کی چھلک نے تیرے عقیدے کا راز کھولا، سجی ہے فرش عزا عرش پہ کہ جس میں تو ناد دے رہا ہے، ناد کرتے آواز دے رہے کو ہے، سجی ہے فرش عزا فرش پہ، سجی ہے فرش عزا عرش پہ کہ جس میں تو ناد دے رہا ہے، فرش کا مولا عرش کا قائم بھی خود ہی تجھ کو داد دے رہا ہے۔ میری 1000 وجہ لیکن سکیل بھائی ایک چیز محسوس کی تھی، اس لیے آپ کی بارگاہ میں پیش کی سلوات پڑھتے ہیں۔ خطیب علیہ آباد جناب حسین مہدی صاحب ابھی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے جناب یوسف کی بات کی، شبیہ کی بھی بات کی، سرکار دو عالم کی بھی بات کی۔ میرا اصل میں آج دل ہے، بے شک میرے دل کا موضوع جو ہے وہ سرکار امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن میرا دل ہے کہ میں حسین کا حسین اور حسین بیٹا کو بتاؤں۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ بدقسمتی سے شیعہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ شب عاشور اس کا پڑھنے کا دن بنتا ہے، لیکن وہ دن ایسا نہیں کہ اس دن سرکار کا فضائل پڑھا ہے، تو میں نے جان بوجھ کے اپنے آپ سے ایک جنگ کی ہے کہ یار میں نے پڑھنا ہی حسین کا اکبر ہے۔ ایک سوال پڑھ رہا ہوں یہ نظم لکھی، اور یہ میں نے پہلے بھی دعویٰ کیا کہ جو میں کہیں نہیں پڑھتا میں اس جگہ لازمی پڑھتا ہوں۔ تو
इस नज़म के साथ इंसाफ कीजिएगा, जाकर को दाद नहीं होती, जिक्र को दाद। लेकिन दाद का मुताबिक समय एक बात इससे पहले थोड़ा सा वक्त आज मैं लूंगा, मैं माजूर चाहता हूँ, इसको जल्दी हो 10 बजे स्टार्ट होगी करूँ बेशक 10 पर हो जाए। एक बात मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मेरे जैसा हकीर कमी छोटे से लेवल का ग्रास रूट लेवल का शायर है, उसने आगे कहा मौला आसान से ही तवज्जो करनी है, मौला आपकी शान में कुछ आशार लिखी हैं, फरमाया सुनाओ। उसने आशार सुनाए, मौला ने उसको दाद दी, मौला ने उसको न्याज दी, वो लेके चला गया। जब जाने लगा सरकार ने कहा यार वापस आया, और मैं तू जानता है तेरे अलावा इस वक्त मदीने में बहुत बड़े बड़े पाइप के उलमा भी हैं, शायर भी हैं। कहता मौला जानता हूँ। फरमाते हैं तुम ये जानते हो कि वो हमारी शान में नहीं लिखते? कहता है मौला ये भी जानता हूँ। फरमाते हैं इसकी वजह जानना चाहोगे? हाथ जोड़ के कहता मौला बता देंगे तो मेहरबानी। फरमाते हैं हमारी शान में वही कलम लिखता है जिसपे हमारी दादी और इस जिक्र को हरीस ने किया, हुसैन साहब ने किया, मैं कर रहा हूँ। इवन अगर नालैन भी कर रहे हैं तो मुझ समेत आलम रब्बानी समेत मुज्तहिद समेत किसी बंदे की औकात ही नहीं है, बस हाथ नहीं है कि वो इंसान को दाद दे सके, इंसान को दाद दे सके। बस तवज्जो है, सोगी मेरे पास नहीं, सुर मेरे साथ नहीं, लफ्ज़ है उन्हीं के ऊपर। इसलिए मैं इसके नज़र पेश कर रहा हूँ। अर्श-ए आज़म की नूरी काबीना में मासूम असेंबली इकट्ठी हो गई। अर्श-ए आज़म की मासूम असेंबली में काबीना इकट्ठी हो गई। लोगों ने वहाँ पे खुदाए बुजुर्ग को वर्कर ने सबको जमा किया, कहा यार आज मेरा दिल है, नहीं मैं तेज करता हूँ बात को, आज मुझ बेदिल का दिल है कि मैं अपने कान ना होते हुए अकबर के फज़ाइल सुनूं। लोगों ने कहा या अल्लाह हम अली अकबर के ऊपर क्या लफ्ज़ शायरी कर देना, मैंने कहा चलो शुरुआत मैं कर देता हूँ, मैं बानी जश्न हूँ। जिसकी जुबान में जो है, जिसके अदराक में जो है वो बयान करें। अल्लाह ने शुरुआत की बात की, अल्लाह ने कहा खुदा ने नबी से मुरसल तेरी शबी को मैं घर बनाऊं। नबी से मुरसल तेरी शबी को मैं घर बनाऊं, शबी के मुनकर को मैं शबी है मोहम्मद मुस्तफा। कहा खुदा ने नबी से मुरसल तेरी शबी को मैं घर बनाऊं, शबी के मुनकर को मैं शबी है मोहम्मद मुस्तफा दिखाऊं। अल्लाह बेजुबान है, अल्लाह की जुबान नहीं है, बेजुबान को तवज्जो करनी है। शबी के मुनकर को मैं शबी है मोहम्मद मुस्तफा दिखाऊं। अल्लाह फरमाता है बना है कुछ इस तरह से अकबर के बेजुबा भी ये कह रहा है, बना है कुछ इस तरह से अकबर के बेजुबा भी ये कह रहा है, मैं तुझ पे कुर्बान ए मेरे अकबर, मैं तेरे सदके में। पेश किया था हसन तकरीबन उसी से मिलती जुलती बात है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं नाम ना दूं, लेकिन नाम ले लेने में कोई खजालत नहीं है क्योंकि नाम मासूम है, जिक्र भी मासूम है। तो सबसे पहले सरकार आलम आए मेंबर खुदाए बुजुर्ग बरतर पे। सरकार ने अपने तो तारुफ अली अकबर का पेश किया। बाबा जी बहुत तवज्जो के साथ फरमाते हैं फर्श पे उतरे हैं दो मोहम्मद, है एक अहमद तो दूजा अकबर। जीम अलिफ जा का काफी है, बड़ा मुश्किल काफी है। फर्श पे उतरे हैं दो मोहम्मद, है एक अहमद तो दूजा अकबर। मेरा तो दिल है यहाँ रुकू में चल ऐसा कर नीचे तू जा।
मेरा तो दिल है यहाँ रुकूं मैं, चल ऐसा कर नीचे तू जा, अकबर छवि बनाई है हक ने जब से, तेरी कसम मेरा दिल ये चाहे। रसूल कहते हैं मेरी एक मेरी ख्वाहिश है, मेरी हसरत है। हसरत क्या है? चौथे मिसरे में पेश करूं, फरमाते हैं छवि बनाई है हक ने जब से, तेरी कसम मेरा दिल ये चाहे कि बेजुबान एक बार कह दे, मुझसे कह दे कि बेजुबान एक बार कह दे, करीब मेरे तू आ जा सरकार आदम है। फरमाते हैं हमारे जब ये फलक से बोले कि बाखुदा ये ज़हूर ही, हमारे जब ये फलक से बोले कि बाखुदा ये ज़हूर ही है, फलक तलक रोशनी जो है ये अली और अकबर का नूर। फलक तलक रोशनी जो है ये अली और अकबर का नूर ही है। फरमाते हैं मेरा तो दिल है कहूँ मैं मूसा से जाके फिर से कलाम कर दे। मेरा तो दिल है कहूँ मैं मूसा से जाके फिर से कलाम कर ले, क्यों हुसैन का ये सहन है लेकिन अरस से लगता है ये दूर ही है। अच्छा एक कैरेक्टर है तारीख इस्लाम के आज तक भी है, सरकार ईसा मरियम। अच्छा ईसा ने करना क्या है जनाब, जब वो वापस आएंगे, मैं थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूं, तारीफ कीजिएगा, क्या करेंगे हज़रत ईसा आके? इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो इमाम मेहदी फरमाएंगे तकद्दम या अब्दुल मरियम मरियम आगे आगे नमाज पढ़ाए। मेहदी कहेंगे मौला मेरी ये जुर्रत नहीं, मेरी ये औकात नहीं कि हुज्जत के होते हुए मैं छोटी हुज्जत बड़ी हुज्जत के आगे नमाज पढ़ाऊं। आपने तवज्जो नहीं की। मेरा तो ये गुजारा ही नहीं है, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हुज्जत दोहरा के होते हुए मैं कल के ज़माने का मासूम होके हुज्जत को नमाज पढ़ाऊं, कल के ज़माने का बुत फरोश करता नहीं कैसे रसूल के आगे आगे ईसा नमाज पढ़ेंगे। ईसा ने क्या ताल्लुक पढ़ा बावली? कहा ये ईसा ने रब्बे अकबर इज़्न की माला गले में जड़ लूं। कहा ये ईसा ने रब्बे अकबर इज़्न की माला गले में जड़ लूं, शबाब अकबर का लेके सदका मैं तेरे यूसुफ से आगे बढ़ लूं। इससे पहले अलीपुर की शान में ये बात नस्ल में भी सुनी कोई बहादुरी है। मैं कह रहा हूं कहा ये ईसा ने रब्बे अकबर इज़्न की माला गले में जड़ लूं, कहा ये ईसा ने रब्बे अकबर इज़्न की माला गले में जड़ लूं, शबाब अकबर का लेके सदका मैं तेरे यूसुफ से आगे बढ़ूं। फरमाते हैं नमाज़े कायम भी मैं पढ़ूंगा मगर मेरे दिल का दिल हुआ है। नमाज़े कायम भी मैं पढ़ूंगा मगर मेरे दिल का दिल हुआ है। नमाज़े कायम भी मैं पढ़ूंगा मगर मेरे दिल का दिल हुआ है। नमाज़े कायम भी मैं पढ़ूंगा मगर मेरे दिल का दिल हुआ है। बाबा जी मैं थक नहीं गया, भूल गया हूँ। मिसरा इतना बड़ा है खड़े होके क़यामत तक दावतें छोटी है। मैं कह रहा हूँ ईसा कह रहे हैं नमाज़े कायम भी मैं पढ़ूंगा मगर मेरे दिल का दिल हुआ है तू भी अकबर अली भी अकबर, मैं इसके पीछे नमाज पढ़ लूं। बारी आ गई सरकार सजाद की। अब सरकार सजाद वो हस्ती है जिसको अली ने अपनी जिंदगी में अली कहा है। मैं कह रहा हूँ अली ने हाथों पे लेके इसको कसम खुदा की वली कहा। अली ने हाथों पे लेके इसको कसम खुदा की वली कहा है। इबादतों की जो है ना जीनत उसी ने इसको कली कहा।
मैं इससे पहले ये शेयर करूं, अगर मैं दौराने नज़म एक बात कह देता मुझसे एक खूब समझते कि यार अगर मैं कहता कि भाईजान की नज़म जो मैं पढ़ रहा हूँ उस्ताद मोहतरम सरकार शायर अली बैग हैदर रिजवी साहब की लिखी हुई है, या अनीसा दौरा जनाब शौकत साहब की लिखी हुई है, या हमादे अली बैग अकील मोहसिन नकवी साहब की लिखी हुई है, तो शायद इस पर वो दाद होती, क्योंकि नाम को दाद होती। मैंने पहले कहा दाद जाकिर को नहीं जिक्र तो होती है। जो बात अली अकबर की शान में कर रहा हूँ, इतने बड़े नाम है शायरी में, कभी किसी ने ये बात की हो तो फिर कोई दाद नहीं। लेकिन अगर मुझसे तखय्युल लेके आपको खुशी हो रही है तो आप कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ अली ने हाथों पे लेके इसको कसम खुदा की वली कहा है, इबादतों की जो है ना जीनत उसी ने इसको कली कहा है। समझ में ना आ सकी है अकबर तेरे फजीलत की ये बुलंदी, समझ में ना आ सकी है अकबर तेरी फजीलत की ये बुलंदी। जो खुद अली है जो खुद वली है उसी ने तुझको अली इमाम हुसैन ने सरकारी फर्ज की बात आ गई है तो सरकार फरमाते हैं इमाम हसन ने एक बात की, 14 शेर लिखे हैं, सारे के सारे नहीं पढ़ूंगा। इमाम हसन ने एक बात की तो इमाम हुसैन ने उसका जवाब दिया, फरमाया वो देखे भैया नबी फरिश्ते जो जोक दर जोक आ रहे हैं, वो देखे भैया नबी फरिश्ते जो जोक दर जोक आ रहे हैं, सदा ये सुन ले हुसैन मौला शबी है नाना दिखा रहे हैं। सदा ये सुन ले हुसैन मौला शबी है नाना दिखा रहे हैं। हुसैन मौला क्या फरमाते हैं, मुझे था नाना ने यूं उठाया ये मंजर ना देख पाया, नाना ने यूं उठाया कोई ये मंजर ना देख पाया, इसी तरह मैं भी सर बुलंद था हुसैन सबको बता रहा इमाम हुसैन ने उठाया तो आसमानी फरिश्तों में चहल गोलियां शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई। तो अगर से मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अगर ये बच्चे यहाँ पे कुछ आपस में बातचीत करना शुरू करते तो बड़े की एकदम तवज्जो जाएगी कि यार उसकी तरफ तवज्जो करो, क्या कर रहे हो। अब जब फरिश्तों में थोड़ी सी चहल गोलियां बातचीत शुरू हुई तो अल्लाह ने लहजे गुस्सा में थोड़ा सा देख के फरिश्तों ने कहा तुम क्या कर रहे हो। आवाज़ फरिश्तों की आई, फरिश्तों ने जो बात की मिसरों में पेश कर रहा हूँ। फरिश्ते कहते हैं हुसैन हाथों की सर बुलंदी पे आया अकबर ए रब्बे अकबर। हुसैन हाथों की सर बुलंदी पे आया अकबर ए रब्बे अकबर। जवाब दे रहे हैं ना, हुसैन हाथों की सर बुलंदी पे आया अकबर ए रब्बे अकबर, शबी अहमद को आज हमने भी पाया अकबर ए रब्बे। शबी अहमद को आज हमने भी पाया अकबर ए रब्बे अकबर। फरमाते हैं ज़हूर अकबर फर्श पे है लेकिन हम तो सिदरा पे देखते हैं। ज़हूर अकबर फर्श पे है लेकिन हम तो सिदरा पे देखते हैं, क्यों अभी तो मामूली सा ही उसने उठाया अकबर। जिसका मामूली सिदरा तक जाता हो जब मन कुन तो मौला कहेगा तो एक सवाल पढ़े मौला आखिरी यार मिसरे और सलाम मसाइब के बली की दुख्तर बली की जोजा बली की मातर लो देखो आई। नहीं पता कि बीबी साहब बड़ी देर बाद देखना है इसकी। मैं कह रहा हूँ बली की दुख्तर बली की बेटी बली की मातर लो देखो आई। अच्छा बाबा जी, जब आप कभी किसी चीज को पहली बार देखना होता है तो आप मुंह दिखाई में कुछ देते हैं। बहुत बाबा जी बड़ी बारीक बात है कि बली की दुख्तर बली की जोजा बली की मादर लो देखो आई। बीबी देर से क्यों आई है, मैंने पूछा बीबी देर से क्यों आई है। फरमाया मेरी एक मजबूरी थी, मुझे एक चीज चाहिए थी। वो जवाब मुझे बीबी ने अता किया। फरमाती हैं बली की दुख्तर बली की बेटी बली की जोजा लो देखो आई, कसरत था दिल में के देखूं अकबर मगर हो भैया की मुंह दिखाई।
अली की मादर लो देखो आई, कसर था दिल में के देखूं अकबर, मगर हो भैया की तू दिखाई, मुबारकें देती जा रही है कदम कदम पे अली की बेटी, मुबारकें देती जा रही है कदम कदम पे अली की बेटी, मुझे अता कर दो मेरा अकबर, यही मैं कहने हूँ आई भैया, मुझे अता कर दो मेरा अकबर, यही मैं कहने हूँ आई भैया। इमाम हुसैन ने अकबर बादशाह हाथ में देते हुए एक बात कही, मैं ज़ैनब लंबी देर के लिए दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मांग, बहुत तवज्जो के साथ, लंबी देर के लिए दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए दूंगा, बच गया तो इमाम बन के वादा करता हूँ वापस कर दूंगा। अल्लाह, बहुत तवज्जो के साथ। मेरा मौजू सरकार इमाम हुसैन है, लेकिन मैं मौला अली अकबर की चंद गुर्बत इमाम हुसैन से मिला के करूँगा ताकि लोगों को पता चले कि हुसैन था कितना गरीब। बटू भाई बड़ी जल्दी की मुसलमानों ने 18 जेठ 10 मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन को चीन से ज़मीन को उतारने की, वगरना अली अकबर के मर जाने के बाद हुसैन ने कितनी देर समझा रहा, बड़ी जल्दी करके मुसलमान। ये मौजू मुझे डर लगता है हमेशा पढ़ते हुए, मैं मोमिन की आंखों का बुक हो गया है। मैं इससे पहले कि मैं बात अपनी मसाइब के हवाले से शुरू करूँ, हर बंदे के दिल में बाबा जी कोई ना कोई हसरत होती है, कोई ना कोई इल्तिजा होती है, ख्वाहिश होती है। मैं आप सब लोगों से दस्त दस्त हाथ जोड़ के गुजारिश करूँ कि मैं दुआ करूँ, आप उसके लिए आमीन ज़रूर कहिएगा। जवाब में मैं जो बात कहूँगा तो आपके साथ पूरी होगी कि मेरी ये हसरत है कि मालिक मुझे जब भी अपनी बारगाह में बुलाए, 10 मुहर्रम का दिन मैंने मौला को जंजीर का पुरसा दिया, और जिस दिन मैं हुसैन पूरा पढ़ लूँगा ना, वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। दुआ ये कर देना जब मुसल्ले पे जाओ, जब किसी मजलिस में जाओ, कि मालिक आपकी छोटे से जाकर ने एक दुआ की है, उसकी दुआ कबूल कर लीजिएगा। सीने में मैं आपको कह दूँगा, आप तमाम मोमिन और मोमिनात में से जब कोई जहाँ जिस तरह जिस वक्त कहेगा कि जिक्र खैर करना है, मैं हाजिर हूँगा, बिना किसी लिहाज के हाजिर हूँगा। मुश्किल तो इन मौजूआत में से एक मौजू सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कोई एक गुर्बत हो इमाम हुसैन की तो बयान कीजिए। मदीने से लेके मदीने से लेके करबला तक, फिर करबला से लेके शाम तक कौन कौन सी जगह पे इमाम हुसैन के मसाइब नहीं। लेकिन मैंने चूँकि अर्ज़ की है कि मैं सरकारी अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करके फिर मौला हुसैन तक आऊँगा। इजाज़त देने के लिए मौला अली अकबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आज कहा, बाबा मुझे मौत की इजाज़त है। इमाम हुसैन ने कई दफ़ा मना किया अली अकबर को। तंग आके अली अकबर ने कहा, बाबा क्या मेरी किस्मत में शहादत नहीं? बाबा क्या मेरा नाम शोहदा की फहरिस्त में नहीं है? फरमाया, अकबर तेरे खून के बगैर ये मट्टी खा के शिफा नहीं बनेगी। लेकिन अकबर मेरा तुझसे एक सवाल है, काश के तू होता हुसैन, मैं होता अकबर, मैं तुझसे मांगता मौत की इजाजत, फिर देखता अकबर जवान बेटे को कैसे इजाजत दी जाती। बस जैसे कैसे भी अली अकबर को एक दफा रवाना किया, रवाना करके अली अकबर, अच्छा 3 दफा से ज्यादा इमाम हुसैन ने कभी किसी शहीद को बुला के वापस नहीं भेजा। किसी को भेजा, बुलाया, फिर बुलाया, तीसरी बार भेजा तो फिर नहीं बुलाया। अली अकबर करबला का वाहिद शहीद है, 37 दफा हुसैन ने भेजा, 37 दफा हुसैन ने वापस बुला दिया। अकबर बेटा जी बाबा वापस आओ, बाबा बेटा गाड़ी चूमने दो, फिर बेटा अकबर वापस आओ, जी बाबा बेटा आंखें चूमने दे, फिर भेजा, फिर बुलाया, जी बाबा बेटा सीना चूमने दे, फिर भेजा, फिर बुलाया, बेटा गर्दन चूमने दे। 37 दफा अली अकबर जब वापस आए ना तो आगे कहा, बाबा अगर नहीं भेजने का दिल तो मदीना चले जाओ, अगर नहीं भेजने का दिल तो मदीना चले जाऊं। फरमाया नहीं बेटा अकबर जाओ। फरमाया अच्छा बोला, फिर इमाम बन के वादा करें, अब बुलाऊंगा तो आवाज नहीं देंगे। इमाम ने कहा ठीक है अकबर बेटा, इमाम बन के वादा हो गया, अल्लाह के सबूत जा, आवाज नहीं दूंगा। अब मक्तल मुकर्रम मदीना से मदीना तक, मक्तल अबी मखनफ, तमाम किताबों में, मुस्तनद तरीन किताबों में ये रवायत दर्ज है कि इधर जब अली अकबर अपने जीन पर सवार हुए, एक दफ़ा हुसैन ने कब्ज़ा तलवार से सर उठा के हसरत भरी निगाहों से अली अकबर को
अली अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई। अकबर के घोड़े ने हल्का हल्का सा चलना शुरू किया। हुसैन के हाथ कमर पे आए, हुसैन ने खड़े हुए। एक दफा अली अकबर ने घोड़े को थोड़ा सा तेज किया, हुसैन के कदमों में थोड़ी सी तेजी आई। अकबर ने एड़ लगाई, घोड़े की रफ्तार मजीद तेज हुई, हुसैन के कदमों की रफ्तार मजीद तेज हुई। इधर अली अकबर ने घोड़े को दौड़ाने के मराहिल में जब आ गए, एक दफा घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े ने भागना शुरू किया। हुसैन ने गले से अपना साफा उतार के कमर में बांधा, दोनों हाथ कमर पे रख के पीछे दौड़ना शुरू किया। इधर अली अकबर के घोड़े की रफ्तार तेज हुई। 9 मील के फासले तक अली अकबर पहुंचे होंगे कि अली अकबर ने देखा एक नकाब पोश बीबी जिसके माथे पे मोट की पट्टी है, दोनों हाथ पहलुओं पे हैं, जख्मी हाथ उठा के कहती है, अकबर जल्दी ना करना, अकबर जल्दी ना करना, मेरा हुसैन मरने से पहले मर जाएगा। अब जब अली अकबर ने मुड़ के देखा, इमाम हुसैन ठोकरे खाते हुए करबला की रेत में मुंह के बल गिरते हुए, सरबटे लेते हुए, करबटे लेते हुए अकबर वापस मुड़ के आए। बाबा जान आपने तो कहा था कि अब आवाज नहीं दूंगा। हुसैन ने गुरबत का जुमला कहा। हुसैन ने कहा, अकबर मैंने आवाज कब दी है? हुसैन ने कहा, अकबर मैंने आवाज कब दी है? बाबा फिर पीछे क्यों है? आपने तो वादा किया था, आवाज आई इमाम बन के वादा किया था, पीछे बाप बन के आया। वादा इमाम बन के किया था, पीछे बाप बन के आया। अच्छा बाबा इतना प्यार है, अकबर एक एहसान कर, तू घोड़े लेके जा, लेकिन जब तक फौज में घिर नहीं जाता ना, जब तक फौज में घिर नहीं जाता, अपना मुंह मेरी तरफ रख, घोड़े का मुंह फौज की तरफ रख। बस अली अकबर शहीद हुए। आखिरी सलाम के लिए इमाम हुसैन को बुलाया। मैं नहीं गुरबत पढ़ता, बोला इमाम हुसैन की और अली अकबर की। बस एक रवायत पढ़ूंगा कि हमारे एक बहुत बड़े मेहदी बैरून वो आलम रब्बानी गुजरे जिन्होंने कम से कम 25 ज्यादा से ज्यादा 40 अशरे कमरे इमाम हुसैन पे पढ़ी है। एक साल वो अशरे के लिए मजलिस में पढ़ रहे थे, किसी ने दरखास्त की कि हुसैन का अकबर सुना दो, हुसैन का अकबर सुना दो। मेहदी बैरून ने तवील मसाइब पढ़े मौला अली अकबर के। पढ़ते 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 मेहदी के मुंह से बेसाख्ता दानिस्ता तौर पे निकल गया कि अकबर के कलेजे में बर्छी लगी, अकबर के कलेजे में बर्छी लगी। अभी मेहदी के लफ्ज़ खत्म नहीं हुए थे, खादिम दौड़ा आया, उसने कहा या शेख अनजलना, नीचे उतर शेख, नीचे उतर। कहा क्या हुआ? मैंने गलत पढ़ दिया। कहा पता नहीं तूने गलत पढ़ा या सही पढ़ा है, जब से तूने कहा है ना अकबर के कलेजे में बर्छी लगी, हुसैन की कब्र से ताजा खून जारी हो गया, हुसैन की कब्र से ताजा खून जारी हो गया। मेहदी रोते रोते घर आ गए। मेहदी कहते हैं मैं आधी रात को सोया हुआ था, मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। दस्तक दे के जब मैंने खोला, मैंने देखा कि एक 18 साल की बुढ़िया मेरे दरवाजे पे खड़ी हुई है। मुझे कहती है मेहदी आज तूने हुसैन की जरी पे अकबर की बर्छी पड़ी है। कहते हैं बीबी मैंने गलत पढ़ा। कहा नहीं गलत नहीं पढ़ा। बीबी कोई बात छूट गई? कहा नहीं छूटी। फरमाया 1 मिनट याद रखना, हुसैन की कब्र के ऊपर आज के बाद अकबर की बर्छी ना पढ़ना, अकबर की बर्छी ना पढ़ना। फरमाया क्यों बीबी? कहा जब से तूने कहा है ना अकबर के कलेजे में बर्छी लगी, जन्नत में हुसैन और जैनब एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के रो भी रहे हैं, कह भी रहे हैं अम्मा इस दिन के लिए अकबर को पाला था, अम्मा इस दिन के लिए अकबर को पाला था। इजाजत लेने के लिए इमाम हुसैन ख़याम में है। और बाबा जी कौन कौन सा दुख है जो इमाम हुसैन को नहीं मिला? ये वाहिद शहीद है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा से लेके भाई हसन तक तमाम के मसाइब के वारिस भी हैं, तमाम के मसाइब के वारिस भी हैं। मसलन अली को जब दर्द लगी सर में, अली का सिर्फ बाबा जी देखिएगा मेरे 2 मिनट के लिए, अली का सर शिगाफ्ता हुआ था लेकिन दिमाग की हड्डी नजर आ रही थी, दिमाग की हड्डी नजर आ रही थी। इधर इमाम हुसैन जब अब्बास को एक दफा लेने के लिए गए हैं ना, किसी जालिम ने ऐसी कारी ज़र्ब मारी ज़ियारत नाहिया में। आप जब मेरे बार में आकर कहते हैं मेरा सलाम हो उस शहीद पर कि जिसकी सर की हड्डी मकामे सजदा तक कट चुकी थी, अबरू कटे हुए थे। बस इमाम ने कहा अपने सर पे कपड़ा बांधा, कपड़ा बांध के ज़ैनब कुलसूम को सलाम आखिर करने आए हैं। बस जो भी अल्लाह
रसाइल पढ़ा करते थे, वो आयत पढ़ी। आमिया ने कहा कि इस गरीबी में, इस दस्त में, मुझ लूटी हुई के पास कौन मांगने आ गया। बीबी फिजा देखने के लिए गई, तड़प के वापस आई, कहा आलिया ना सवालिया है ना सवाल आम है। फरमाया क्या हुआ? कहा सवाली हुसैन है, सवाल मौत की इजाजत है, सवाल मौत की इजाजत है। बस भाई अंदर आए, सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबसे विदा किया। विदा करके एक दफा जब खैमे से बाहर निकले हैं, खैमे से बाहर निकले हैं, किताब के अल्फाज ये हैं, एक दफा इमाम हुसैन ने दाएं देखा, फिर एक दफा बाएं देखा, फिर एक दफा दर्द भरे लहजे में कहा ऐनल अब्बास, ऐनल अकबर, ऐनल कासिम, ऐनल असहाबता। और मेरा अकबर कहाँ है, मेरा गाजी कहाँ है, मेरा कासिम कहाँ है। फिर एक दफा हुसैन ने कहा मेरे शेरों। और किताबें लिखती हैं कि मक्तल में सर तन से जुदा लाशें हवा में मोलक हुई, कटे हुए गलों में से आवाज आई मौला हमें मौत ने मजबूर कर दिया है, वरना आपकी नुसरत के लिए आप भी हाजिर हैं। हुसैन ने कहा गुरबता, ज़ैनब ने कहा बेटी कुर्बान जाए, बहन तेरे से कुर्बान जाए। इस गरीबी में, इस गुर्बत में गरीबी का दावा क्यों करता है? आवाज आई ज़ैनब एक वक्त था जब मैं रहवार पे सवार होने लगता था, अकबर मेरी लजाम पकड़ता था, अब्बास सीन के नीचे हाथ रखता था। आज ना अकबर है, ना कासिम है, ना गाजी है। एकदम किसी खैमे में से एक बुढ़िया एक सुलझना को लेके बाहर आई। हुसैन ने कहा मानंता तू कौन है? आवाज आई मैं तुम्हारे लाहौर वाली गाजी की बहन रुकैया हूँ। आवाज आई रुकैया तुझे सुलझना तैयार करना किसने सिखाया? फरमाती है मौला कल रात को अब जब अपने साहबा से खिताब कर रहे थे ना, अब्बास अपना रहवार लेके मेरे खैमे में आए। आके अब्बास ने कहा देख रुकैया कल नमाज ज़ोहर के बाद हम सब चले जाएंगे, हुसैन को हो सकता है मुझे बात की जरूरत पड़े। रुकैया 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 तुम कल अब्बास बन के मौला हुसैन की सवारी को तैयार तुम कल अब्बास बन के मौला की सवारी को तैयार करना। मौला हुसैन, मौला अब्बास ने मुझे जीन रखने का तरीका भी सिखाया, लगाम पकड़ने का तरीका भी सिखाया, बिठाने का तरीका भी सिखाया। बस जनाब हुसैन एक दफा सवार हुए अपने शबीहे जुलजना पे। अब हुक्म दिया जुलजना चल मक्तल चले। अब एक मैं यहाँ पे तकाबल पढ़ूंगा छोटा सा। 19 रमजान अभी गुजरा है, सरकार मौला कायनात आपके तमाम उलमा ज़ाकिरीन से सुना है। अली सोई हुई ज़ैनब के पास है। वो जो मंजर अली असगर के साथ बीबी रबाब का हुआ था ना, बस फर्क इतना था असगर गरीब का बैठा था, रबाब के साथ में था। ज़ैनब अमीर की बेटी थी, बिस्तरे पे लेटी हुई थी। अली ने चेहरे पे चेहरा रख के ज़ारो कदार रोना शुरू किया। अली के आंख से आंसू ज़ैनब के चेहरे पे गिरे। ज़ैनब उठी। अली जानते थे अली ने सोई हुई बेटी को उठा दिया। हुसैन ने जागी हुई बेटी से कहा बेटा सो जा। हुसैन ने जागी हुई बेटी से कहा बेटा सो जा। फर्क क्या है? फर्क एक बता रहा हूं कि अली जानते थे ज़ैनब है अमीर की बेटी, आज ना सोई। ज़ैनब के 18 भाई, जिंदगी के फिर किसी हिस्से में सो जाएगी। हुसैन जानते थे सकीना हो गई है गरीब, सकीना होने वाली है यतीम। समझ नहीं आई सकीना का अकबर कोई नहीं, गाजी कोई नहीं, कासिम कोई नहीं, असगर कोई नहीं, सज्जाद बीमार है। हुसैन कहते रहे बेटा सो जा, बेटा सो जा, बेटा सो जा। हुसैन जानते थे अगर सकीना आज ना सोई तो कब्र की रात तक सकीना को नींद नहीं आनी। एक जुमला में यहाँ पे कि जब रावार सुनते हैं ना, अल्लाह जाने कितनी मुश्किल से उतने इमाम हुसैन बेटी जुलजना के सुमो में बिना तस्बीह अपनी चादर फेंक के सुमो के साथ लिखती है और एक ही बात कह रही थी जुलजना मेरे बाबा को मक्तल ना लेके जो जाता है वापस नहीं आता, जो जाता है वापस नहीं आता। तकाबल एक और पढ़ूं यहाँ पे। जब अली नमाज़े फजर के लिए रवाना होने लगे ना, तो इधर देखिएगा एक दफा ऐसे उम्मे कुलसूम पीछे बीबी ज़ैनब
गर्दन से थोड़ा सा बार निकाल के आलिया ने कहा बाबा ऐसा नहीं हो सकता कि आज नमाज भैया हसन पढ़ा ले, आज नमाज भैया हसन पढ़ा ले। ये थी अमीर की बेटी, इसने बाप को ये फरमाइश कर दी। हुसैन गरीब की बेटी ने बाप के गले में बाहें डाल के एक कयामत खेज जुमला कहा, फरमाती है या बता इस तस्लाम का दिल को बाबा अपने मौत को तस्लीम कर दी। बाबा या बता यानी पेपर या हुसैन चाहते थे सकीना आयशा सोए, आखिरी सांस तक नहीं सोई। गरीब की बेटी ने बाप की गुर्बत की बाजू उठा, एक दफा दर्द भरे लहजे में कहा या बता इस्तस्लमता लिल मौत, बाबा आपने भी मौत को कबूल कर लिया। बाबा बुजुर्गी को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? वसीयत की बोले हमारी सकीना मेरे बाद खूबियों को तंग ना करना, बेटा जहाँ जगह मिले सो जाना। एक वसीयत हम आपकी गिरियों को देखते हुए मैं एक मंजर लाज़िम सकीना को लेकर जब इमाम हुसैन खयाम में वापस आए हैं ना, तो एक दफा सरकार सज्जाद ने पास से बेदार हुआ, अपनी शानत वाली उंगली एक दफा इमाम हुसैन की तरफ जाके कहते हैं फूफी अम्मा ये बूढ़ा शख्स कौन है? जो मेरी बहन को लिए आ रहा है। आवाज नहीं बेटा सज्जाद की तरह बाप इमाम हुसैन बस रवाना हुए मकतल में। तारीख कहती है जी इतना बड़ा हमला किया है ज़हरा के लाल ने के लोगों को अली भूल गया, करबला के बूढ़ों को अली भूल गया, करबला के बूढ़ों को अली भूल गया। किया क्या इमाम हुसैन ने? एक नेज़े को नस्ब किया एक तरफ, 2 मील के फासले तक घोड़ा दौड़ाया, फिर नेज़ा नस्ब किया दूसरी जानिब, खुद वस्त में आके खड़े हो गए, एक लकीर खींची, कहा तुमने मेरा अकबर मारा, मैं खामोश रहा, तुमने मेरा गाजी मारा, मैं खामोश रहा, तुमने मेरे जिंदा कासिम को कमाल किया, मैं खामोश रहा, तुमने मेरे 6 माह के असगर को पानी पिलाया, मैं खामोश रहा, मैं खामोश रहा। और तुम में से जिसमें हिम्मत है, ये 9 मील का फासला है, मैं अकेला हूँ, तुम 9 लाख हो, हिम्मत है ये जगह से बाहर निकल के दिखाओ, ये जगह से बाहर निकल के दिखाओ। किताबें दिखती हैं पुश्तों के पुश्ते पलट दिए इमाम हुसैन ने। इतना बड़ा हमला किया, इतना बड़ा हमला किया, 2,20,000 अफराद को फासले जहन्नम किया इमाम हुसैन ने। इतना बड़ा हमला था, कूफे वाले दारुल अरकाम से टकराए, शाम वाले शाम गए, मदीने वालों को राहें नजर नहीं आती थी, एक दूसरे में लग के मार रहे थे। इमाम हुसैन का इतना बड़ा हमला करते हुए एक दफा इमाम हुसैन को 2 हस्तियों ने इकट्ठा आवाज दी, ऊपर से आवाज आ गई, ऐ नफ्से मुतमइन मैं तुझसे राजी, तू मेरी तरफ पलट आ। ये आवाज आई ऊपर से, नीचे से मुर्तजिज के साथ साथ एक सयाबी थी, अपने पहलू पे हाथ रखे दुल्हना के साथ साथ दौड़ रही थी, रो रो के कह रही थी मेरा बेटा और कितनी जंग लड़ेगा, मेरे बेटे और कितनी जंग लड़ेगा। इधर इमाम हुसैन ने तलवार नियाम पे डाली, फौजों ने देखा कि हुसैन ने नियाम पे तलवार डाली। बाबा जी मकतल के जुमले क्या है? इमाम हुसैन ने क्या कहा? तीरो भालो नेज़ो खंजरो, अब मुझ हुसैन की तरफ, अब मुझ हुसैन का फर्ज पूरा हो गया। बाबा जी जिसके हाथ में जो था, कहीं से तीर, कहीं से तलवार, कहीं से टूटे हुए खंजर, कहीं से नेज़े, कहीं से भाले हुसैन पे आते रहे। इमाम हुसैन अपने जुल्जना पे बैठे रहे। किसी मलून ने लोहे का एक गुर्द इमाम हुसैन के पीछे मारा, इतनी जोर से गुर्द लगा, असली गुर्द लगा इमाम हुसैन को। एक दफा इमाम हुसैन ने जीन पे डगमगाए, जिससे
तो जी हुरमला 6 तीर लेके आया हुआ था, सह शोभा 6 तीर थे उसके पास। एक तीर उसने अली अस्कर को मारा, एक तीर उसने सह शोभा मौला अब्बास को मारा, जिसकी वजह से मौला अब्बास दीन पे डगमगाए। उसके बाद एक मलूम ने लोहे का घुट मौला अब्बास के अंदर मारा। इमाम हुसैन को भी एक तीर लगा। वो तीर कब लगा, बस वो पेश करता है कि जब इमाम हुसैन की हंसली की हड्डी टूट गई ना, इससे बड़ी बात है, इमाम हुसैन की हंसली की हड्डी टूट गई ना। बाबा जी कमर का जोर 2 चीजों के ऊपर होता है, 2 चीजों के ऊपर। अच्छा कोई लड़ने जाए ना, 2 चीजें बड़े भाई बहुत जरूरी होती हैं। पहली बात उसे नजर सही आता हो, दूसरी बात उसकी कमर पे जोर हो। लेकिन हुसैन करबला का वो वाहिद गरीब है जो लड़ने के अकबर की मौत की वजह से आंखों का नूर चला गया था, अब्बास की वजह से कमर का जोर कोई नहीं, हंसली की हड्डी टूट गई, जीत पे डगमगाना शुरू किया। इमाम ज़माना जानत नाहिया में फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस मासूम पर, उस मजलूम पर कि जो 53 मिनट ना जीत पे था ना जमीन पे था। हसन और हुसैन का छोटा सा फर्क, हसन वो है जिसके जनाजे में तीर हो, हुसैन वो जिसका जनाजा तीरों पे हो। 53 मिनट हुसैन टूटी हुई तलवारों तीरों के दरमियान से गुजरते हुए जमीन पे पहुंचे। बस आखिरी फिक्रा, जहाँ पे इमाम हुसैन बाबूजी जमीन से गिरे हैं वो जगह इमाम हुसैन की मक्तल गाह नहीं है, कत्ल गाह नहीं है। मुझे मालूम है रो रो के इंसान थक जाता है, मेरा मसाइब पढ़ने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है, हजारों कतार गिरिया करे, सिर्फ मैं एक नवाज पूरी पढ़ने जा रहा हूँ कि जहाँ पे इमाम हुसैन जीन से नीचे उतरे हैं वो सरकार की कत्ल की जगह नहीं है। जहाँ पे इमाम हुसैन लेके आए हैं वो 1 किलोमीटर का फासला, देखना जिसने वापस करना है मेरी तरफ, वो 1 किलोमीटर का फासला है। मेरी तरफ नजर कीजिएगा नियाज़े मौला, मेरी तरफ नजर कीजिएगा। जहाँ पे इमाम हुसैन जुल्जना से गिरे हैं 53 मिनट मुझे होता क्या रहा, जुल्जना हुसैन मौला का तवाफ करता रहा, जुल्जना हुसैन का तवाफ करता रहा। टूटे हुए तीर, तलवारें, नेज़े जुल्जना के पहलू पे बेबस होते रहे। हुसैन ने जुल्जना को कहा, जुल्जना मुझे छोड़ के चला जा। एक दफा वो बेजुबान जानवर हुसैन के पास मुंह लेके आया, कहा मौला अपनी मर्जी से उतरा है या मेरी गलती से उतरा है। नवाज है जुल्जना, ना अपनी मर्जी से ना तेरी गलती से, उम्मत ने खुमसी इतना दिया है, अब हुसैन जुल्जना में बैठने के काबिल नहीं। एक दफा आवाज आई, जुल्जना एक एहसान कर सकता है तो एहसान कर। जुल्जना ने कहा मौला अगर तू कहे तुझे मदीना ले जाऊं रसूल के पास, फरमाया नाना आया हुआ है, नजफ ले जाऊं, फरमाया बाबा कोसर का जाम पकड़ के खड़ा हुआ है, मदीना हसन के पास ले जाऊं, फरमाया हसन तीर गिन रहा है, फरमाया माँ के पास ले जाऊं, फरमाया माँ अपनी जुल्फों से मक्तल साफ कर रही है, फरमाया बेटी के पास ले जाऊं, फरमाया बेटी चल पड़ी है, ज़ैनब के पास ले जाऊं, वो खैमागाह पे खड़ी होकर ज़ैनब देख रही है। अकबर को कहा, जुल्जना ने कहा मौला फिर जाने कहाँ जाते हो। हुसैन ने अपनी दोनों बाहें जुल्जना के गले में डाली, कहा जुल्जना मुझे बाहर ले